Hello dear student, welcome to Sri Shivaji College of Arts, Commerce and Science Akola virtually. I belongs to the Department of Chemistry and myself Kanchan Vishramji Kumbalkar, Assistant Professor. This is my 11th lecture on thermodynamics. The highlighted topics are already completed in previous lecture. In this 11th lecture of thermodynamics, we deals with the concept of entropy. एंट्रोपी क्या है? जब कोई सिस्टम को हीट दिया जाता है, कोई सिस्टम को या फिर कोई इंजन को अगर हीट प्रोवाइड किया जाता है तो वो हीट पूरी की पूरी वर्क में या फिर अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो पाती है. We know that the first law of thermodynamics state that the energy cannot be created, cannot be destroyed, but the one form of energy get converted into the another form. But according to the why there is a requirement of entropy concept. Entropy क्यों introduce करना पड़ा? It is because the heat which has been given to the system on the engine वो पूरा का पूरा वर्क में या फिर अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो पाता है. इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कन्वर्ट इट इनटू 100%. Therefore, some part of energy is always unavailable to do useful work. And to measure this, a new function has been introduced for thermodynamics, and that is known as the entropy, and which is indicated as capital S. Now, the absolute value of entropy cannot be calculated. A value of absolute entropy निकाल नहीं पाएंगे. अगर उसे निकालना है तो उसे सिर्फ चेंज के फॉर्मेट में निकाल सकते हैं. So you can calculate the change of entropy, that is ds or delta s. अगर ds consider करते हो तो ds is a minute change and delta s is considered as the overall change of entropy. This entropy change can be defined by the ratio of the heat change to the temperature at which the heat change reversible takes place. That is, ds is equal to dq reversible divided by temperature, or delta s is equal to the overall heat in reversible condition divided by temperature. This is the change in entropy. It is important to note that heat change should be measured under reversible condition. जो भी आप heat change consider करते हो वहाँ पे आप heat change वो reversible condition में ही consider कर पाओगे. In an irreversible process, heat absorbed is an indefinite quantity. वो आइडेंटिफाई या फिर डेफिनाइट नहीं रहेगी, वो अनआइडेंटिफाइड रहेगी इफ़ यू आर कंसिडरिंग अ इरिवर्सिबल प्रोसेस. रिवर्सिबल प्रोसेस मतलब क्या होता है? जहाँ पे एट द एनी स्टेज ऑफ रिएक्शन द रिएक्शन गेट बैकवर्ड, दैट इज नोन एज द रिवर्सिबल. And if it is irreversible means it cannot change into the, it cannot goes reversible. So the irreversible procedure is not considered for the delta S because वो determine नहीं कर पाओगे आप. Next one, the unit of entropy is joule per degree per mole. That is joule degree to the power -1, mole to the power -1. The mole inverse is used because entropy is an extensive property. एंट्रोपी का यूनिट है जूल पर डिग्री पर मोल. ये ऐसे भी लिख सकते हैं पर मोल एंड पर डिग्री. पर मोल इसलिए आता है बिकॉज इट इज़ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. वी नो दैट देर आर टू टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज. फर्स्ट वन इज द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, अनदर इज द इंटेंसिव प्रॉपर्टी. एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मीन्स जो मास पे डिपेंडेंट है दैट इज नोन एज द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. द नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंडेंट है दैट इज नोन एज द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. एंड एंट्रोपी इज द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. हिंस यहाँ पे मोल आ गया, पर मोल आ गया. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट अबाउट द एंट्रोपी इज दैट एंट्रोपी यूनिट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल EU. उसका जो यूनिट है वो
E dot U dot है, and 1 EU is nothing but a 1 joule per Kelvin per mole. And entropy is a state function. State function means what? It is depend on state, not on the path. अगर initially and finally अगर ये दो state लेते हैं, suppose we start a A to B, हमें reaction A to B जाना है या फिर system A to B system में जा रही है, तो there are various paths, first path, second path, third path, means the functions which depend on the only state, that is initial state and final state. पाथ कौन सा यूज़ कर रहे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, वॉट एवर, इफ़ अगर वो अफेक्ट नहीं होता है तो दैट इज़ कंसिडर्ड एज द स्टेट फंक्शन. मीन्स जो सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पे डिपेंड रहेगा, कौन सा पाथ फॉलो किया सिस्टम ने उस पे, उससे इंडिपेंडेंट रहेगा, दैट इज नोन एज द स्टेट फंक्शन. एंड एंट्रोपी इज द स्टेट फंक्शन विच इज डिपेंड अपॉन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट. Now, the physical significance of entropy. The physical significance of entropy will be explained in the term of following different three aspects. So, पहला देखेंगे, पहला है entropy and unavailable energy. What is the basic concept of entropy? Why the need of entropy is necessary? Because अगर आप कोई इंजन को या फिर कोई सिस्टम को हीट सप्लाई करते हो, तो that convert that heat into a work or the another form of heat. But वो 100% नहीं हो पाता है. Some amount of heat has been get not used, that is unavailable for the conversion as a work. तो वो जो heat है, that is unavailable energy, is nothing but a entropy. तो entropy को आप unavailable energy के format में भी लिख सकते हो. But when heat is supplied to the system, some part of this energy is used to do work, which is called as an available energy. मतलब suppose आपने 100 यूनिट, फॉर एग्जाम्पल आपने 100 यूनिट ऑफ एनर्जी एक सिस्टम को दे दिया, उसने आउट ऑफ 100 80 यूनिट इज गेट कन्वर्टेड इनटू वर्क, बट जो 20 यूनिट है जो वो वर्क कन्वर्ट करने में अनअवेलेबल है, that much amount of energy is nothing but a entropy. मतलब कोई सिस्टम या फिर हीट इंजन को अगर आप एनर्जी सप्लाई करते हो, उसमें से जो भी वो एनर्जी वर्क में कन्वर्ट करेगा, जो बचा वाला एनर्जी है जो दैट सिस्टम ऑन सिस्टम और इंजन इज नॉट able to convert it into work, that is known as the unavailable energy, or it is also considered as the entropy. So entropy is a measure of this unavailable energy. जितना ज़्यादा रहेगा उतना ज़्यादा entropy रहेगा. In fact, the entropy can be regarded as the unavailable energy per unit temperature. जितना ज़्यादा temperature रहेगा, that affect the unavailable energy. Hence, entropy is dependent on the ratio of unavailable energy per unit temperature. मतलब unavailable energy per unit temperature, एक temperature range 1 डिग्री सेल्सियस के लिए कितना, that can be counted as that of the entropy and unavailable energy relation. So entropy multiplies by the temperature will be the total quantity of energy that is not available for the useful work. So basically एक ही चीज़ ध्यान में रखना है, एंट्रोपी एंड द अनअवेलेबल एनर्जी मीन्स द एनर्जी गिवन टू द सिस्टम. एक सिस्टम या फिर हीट इंजन को अगर एनर्जी देते हो, दैट गेट कन्वर्टेड इनटू द वर्क, और जो वर्क में कन्वर्ट नहीं होगा, दैट एनर्जी इज नोन एज द अनअवेलेबल एनर्जी एंड दैट इज नथिंग बट अ एंट्रोपी. नेक्स्ट वन, द डेल्टा एस. सो डेल्टा एस इज द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम which is equal to unavailable energy upon the temperature. So the unavailable energy can be considered as a delta S into temperature. In natural processes, entropy of the universe is continuously increasing. For example, एक सादा एग्जाम्पल, एंट्रोपी मतलब क्या होता है? अगर आप कोई चीज़ अच्छे से एक आपने कोई सपोज फॉर एग्जाम्पल आपने कोई ग्रेन ले लिया, फॉर एग्जाम्पल गेहूँ ले लिया, गेहूँ के ग्रेन्स ले लिए और गेहूँ के ग्रेन ऐसे आपने छोड़ दिए, तो वो रैंडमली पूरा स्पेस ले लेंगे. तो विथ इन यूनिवर्स ऑलवेज रिमेंबर द एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग. दैट इज
unavailable energy goes on increasing and available energy is continuously decreasing. So this is the relation for entropy and the unavailable energy. But there is one more type, that is entropy and disorder. We know it is also known as the randomness. फॉर एग्ज़ाम्पल आपने आपके बाइक में पेट्रोल भर दिया. अब पेट्रोल एक एनर्जी फॉर्मेट है, 1 लीटर भर दिया आपने. दैट 1 लीटर का आपको हिसाब वो वॉल्यूम दिख जाएगा. नाउ यू स्टार्ट द बाइक एंड आप घूम के आ गए. अब वो जो 1 लीटर पेट्रोल था वो एनर्जी फॉर्मेट अब 2-4 एनर्जी फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया. आपकी बाइक चलाई उस पेट्रोल ने. दूसरा, बिकॉज ऑफ दैट द हीट हैज़ बीन जनरेटेड, उसकी वजह से जो आपकी इंजन है वो इंजन गरम हो गया. एंड दैट्स वाई द सम अमाउंट ऑफ एनर्जी हैज़ बीन लिबरेटेड इन द फॉर्म ऑफ हीट. एंड द फाइनली some amount of CO2 and CO has been ejected as a pollution. वो कहाँ से आया? सिर्फ पेट्रोल से. मतलब एक पेट्रोल बहुत सारे 3-4 चीज़ों में वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया. अब अगर मैंने बोला कि वो जो एक पेट्रोल है, मैं एक लीटर पेट्रोल दिखा रही हूँ, बट अगर मैंने बोला कि 1 लीटर पेट्रोल कंज्यूम करने के बाद में यू हैव टू कलेक्ट इट एंड शो मी द ओवरऑल कलेक्शन ऑफ द कन्वर्शन ऑफ 1 लीटर पेट्रोल, इट इज़ नॉट पॉसिबल. वो जो CO2 है वो कहाँ से कहाँ चला गया होगा. सो दैट इज़ अ रैंडमनेस. वो एक ऑर्डर में नहीं है, दैट इज़ हैविंग अ डिसऑर्डर. सो द एंट्रोपी is also measured in the form of disorder of system. For example, when we consider molecular level of chemical system, we find that at lower temperature the molecule of a gas have a lower kinetic energy. अगर पानी भी ले लिया, वो ठंडा है तो वो एक जगह पे स्टेबल है, उसकी काइनेटिक एनर्जी नॉर्मल है, वो हिल नहीं रहा है. बट इफ़ यू आर गिविंग अ टेम्परेचर टू दैट वाटर, वो बॉयल होने शुरू हो जाएगा. अगर वो बॉयल होता है तो उसके मॉलिक्यूल घूमेंगे, उसे काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड की है आपने, हेंस वो मॉलिक्यूल रैंडमली मूव करेंगे. वैसा ही गैस का, सपोज़ एक कंटेनर में गैस भर दिया आपने, अगर टेम्परेचर नॉर्मल है तो वो वॉल्यूम कम रहेगा, बट अगर आप उसे गर्म कर रहे हो तो वो गैस फूलेगा. हेंस वो जो मॉलिक्यूल है वो मॉलिक्यूल रैंडमली घूमेंगे एंड द रैंडमनेस इंक्रीजेस. A substance at absolute zero is supposed to be in the highest order from, that is, crystalline substances. At absolute zero of temperature, entropy of the crystalline substance is taken as 0. And for example, in melting of ice, vaporization of liquid, dissolution of salt in water, the entropy increases because the randomness increases. आपने आइस देखा होगा, दैट इज़ सॉलिड. उसे आप हाथ में पकड़ सकते हो, उसका साइज डायमेंशन दिखता है. बट इफ़ इट मेल्ट्स, द डायमेंशन नाउ कोलैप्स. वो आप पूरा का पूरा हाथ में नहीं पकड़ पाओगे, उसका रैंडमनेस बढ़ गया. अगर रैंडमनेस बढ़ता है तो मीन्स एंट्रोपी बढ़ गई, ऐसे बोल सकते हो आप. मीन्स विथ रिस्पेक्ट टू द टेम्परेचर द रैंडमनेस हैज़ बिन इंक्रीजेज. नाउ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज एंड because of the heat provided, the kinetic energy of the molecule increases and the disorder increases, means randomness increases, मतलब उसका entropy भी बढ़ेगा. So basically एक ही चीज़ ध्यान रखना है, अगर disorder बढ़ता है मतलब randomness बढ़ता है तो entropy बढ़ेगा. For example, this is highly ordered. ये पूरा properly arranged है. इसके बाद में दूसरा molecule कहाँ आएगा वो पता है, उसके बाद में तीसरा कहाँ है वो भी पता है. बट यहाँ पे ऑर्डर नहीं पता. ये एक मॉलिक्यूल यहाँ पे है तो दूसरा यहाँ पे, लेकिन तीसरा बहुत दूर है, चौथा उससे दूर है. सो इट इज़ ए हाईली डिसऑर्डर, इट इज़ हैविंग हाई डिसऑर्डर. ये प्रॉपरली अरेंज नहीं है. हेंस हाई डिसऑर्डर हाई एंट्रोपी, हाई लो डिसऑर्डर लो एंट्रोपी, और हाईली ऑर्डर्ड लो एंट्रोपी. दिस इज़ द वन एग्जाम्पल और द एंट्रोपी इन द सेंस ऑफ डिसऑर्डर. एक और कंसेप्ट ऑफ एंट्रोपी का यहाँ पे अगर देखिए, अगर ये आपने सपोज आपके पास ट्रक आ गया, ब्रिक्स का, ईंटों का ट्रक आ गया और आपने उसे उतारना चाहा, तो कौन सा प्रॉपरली यूज़ होता है. मतलब ये लगाने में बहुत टाइम लगेगा.
बट स्पॉन्टेनियसली दिस कैन बी हैपन। तो ये इसका डिसऑर्डर ज़्यादा है, तो जिसका डिसऑर्डर ज़्यादा होता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी वो होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सो दिस इज़ द बेसिक कंसेप्ट ऑफ एंट्रोपी इन द सेंस ऑफ डिसऑर्डर। नेक्स्ट वन मोर एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल एक लड़का ब्रिक्स फेंक रहा है, रैंडम फेंक रहा है बस। तो ये ऐसे अरेंज होने की पॉसिबिलिटी और ऐसे अरेंज होने की पॉसिबिलिटी, इन दोनों में से किसकी ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहेगी? दिस इज हैविंग द मोर पॉसिबल। सच टाइप ऑफ, दिस इज नोन एज द रैंडमनेस। ये प्रॉपरली रखा है, ऑर्डर में है, ये डिसऑर्डर ज़्यादा है, ये रैंडम है, इसकी एंट्रोपी ज़्यादा रहेगी एंड इट इज़ ए नेचुरल वन। ये स्पॉन्टेनियस है। अगर आपके पास में 10-12 ईंट है और आपने फेंक दिए तो वो इस ऑर्डर से तो नहीं लगेंगे, इस ऑर्डर से लगेंगे, मीन्स डिसऑर्डर से लगेंगे। सो हेंस द in universe the entropy has been continuously increases because the disorder is the spontaneous one. तो वो natural है, spontaneous है, hence the entropy can be considered in the disorder. Now जो disorder है वो उसकी probability ज़्यादा रहती है, hence the entropy can be put in the format of probability also. तो आप entropy को probability के दायरे में भी बता सकते हो। सो प्रोबेबिलिटी क्या है कि चांसेस टू बी गेट हैपन, वो मतलब ये अगर ईट फेंक रहा है तो ये होने के चांसेस ज़्यादा है या ये होने के, इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है रैदर दैन दिस वन। सो अगर नेचुरल है, कोई भी चीज़ नेचुरल अगर है तो रैंडमनेस ज़्यादा रहेगा, डिसऑर्डर ज़्यादा रहेगी। सो ड्यूरिंग अ नेचुरल प्रोसेसेस, फॉर एग्जाम्पल नेचुरल प्रोसेसेस, अगर कुछ फेंक दिया बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स वो पसर जाएगा, प्रॉपरली डिसऑर्डर में नहीं लगेगा। सो ड्यूरिंग द नेचुरल प्रोसेसेस अ सिस्टम टेंडर टू बिकम मोर डिसऑर्डर, वो ऑर्डर्ड में नहीं रहेगा। फॉर एग्जांपल एक कंटेनर लिया और उसमें आपने दो चीज़ें, फॉर एग्जांपल चावल और गेहूँ डाल दिए, ठीक है, पहले चावल डाल दिए फिर गेहूँ डाल दिए। नाउ यू शेक इट। अगर शेक कर दिया तो इज़ दैट पॉसिबल कि एक जगह पे चावल चले जाएंगे, एक जगह पे गेहूँ चले जाएंगे? इट इज़ नॉट पॉसिबल। ये ऐसी सिचुएशन आ जाएगी, ऑर्डर्ड डिसऑर्डर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। सो जिसकी ज़्यादा हाईली ऑर्डर्ड रहेगा उसकी प्रोबेबिलिटी कम होती है, उसकी होने की पॉसिबिलिटी कम होती है। दैट इज़ नथिंग बट अ प्रोबेबिलिटी। सो एंट्रोपी प्रोबेबिलिटी के फॉर्मेट में भी आप लिख सकते हो। सो मोर डिसऑर्डर more entropy, more disorder, more entropy, more probability, more disorder, more entropy. So the probability is directly proportional to the disorder. Disorder is nothing but a entropy. So entropy आप probability के format में भी लिख सकते हो. These are the example. Next one. Thus the entropy and probability are expected to be linked with each other. So ये example से दिखा कि probability रैंडमनेस होने के, फॉर एग्जांपल सादा आप एग्जांपल, आप बहुत थके आ रहे हो, आपके पास बुक्स है हाथ में और आप बहुत थक गए हो और आपने रख दिए ऐसे, तो इज़ दैट पॉसिबल? चांसेस कितने हैं वो पसर जाएंगे, या बुक्स है या फिर कुछ आप बहुत थके हो, तो इन दैट केस यू आर नॉट एबल टू पुट इट इन अ प्रॉपर ऑर्डर। सो डिसऑर्डर के चांसेस प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, हेंस entropy is depend on probability. Probability gives a maximum randomness in a natural processes. Hence in a natural processes which are spontaneous, natural processes spontaneous होती है, उनकी disorder की probability ज़्यादा होती है, hence the entropy depend on all these things. For example, if two system have entropy S1 and S2, so total entropy क्या हो जाएगी? S1 plus S2. Whereas if two system has probability W1 and W2, then the total probability can be considered as the W1 plus W2, but it is not. It's a W1 into W2. Thus, in 1896, Boltzmann and Planck suggest the following relation between the probability and the entropy. That is, entropy is directly proportional to the ln of W. सो इसे कन्वर्ट करने के लिए
प्रोबेबिलिटी को प्रोपोर्शनल को कन्वर्ट करने के लिए कांस्टेंट लगेगा. हेंस S इज इक्वल टू K इंटू ln ऑफ W, वेर S इज द एंट्रोपी, W इज द प्रोबेबिलिटी एंड K इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, क्योंकि बोल्ट्जमैन साइंटिस्ट ने वो आइडेंटिफाई किए थे. हेंस एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, व्हाट इज मीन बाय एब्सोल्यूट टेम्परेचर? केल्विन में जो होता है दैट इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर. मीन्स एट अ एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर, मतलब 273 जो है वो केल्विन में है. अगर 273 केल्विन होगा तो दैट इज़ नथिंग बट अ 0 डिग्री सेल्सियस. बट अगर आप -273 केल्विन कंसिडर करते हो तो दैट इज़ अ ज़ीरो एब्सोल्यूट टेम्परेचर. Hence, at absolute zero temperature, substances attain a state of fully ordered arrangement, that is crystalline substance, and probability W become unity. अगर आप absolute zero temperature पे सिस्टम लेके जाते हो तो उसकी probability 1 हो जाएगा, that is ln of 1, and hence S की वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी. मतलब डिसऑर्डर कुछ भी नहीं है, पूरा का पूरा ऑर्डर्ड में है. Hence the most important thing is that absolute zero temperature. इन बोथ केसेस एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर अगर आप मेंटेन करते हो तभी इट इज़ पॉसिबल कि कोई सिस्टम में डिसऑर्डर नहीं रहेगा. ओनली ऑर्डर इज़ देयर. डिसऑर्डर मतलब एंट्रोपी की वैल्यू ज़ीरो रहेगी व्हेन, जब एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर रहेगा तब. So this is all about the entropy and its different types of patterns. In next lecture we will start with entropy change for an ideal gas in terms of pressure, temperature and volume. So up till then, take care, be safe. Thank you very much.